लास्ट क्लास में बोला था आपको। सो नाउ लेट अस डिस्कस hexagonal closed pack. This is the fifth crystal structure because first was simple cubic, second was body centered cubic, and third was face centered cubic crystal structure, and then fourth was simple hexagonal structure, and now this is fifth crystal structure that is known as a hexagonal closed packed HCP crystal structure. Okay, ये पांचवा स्ट्रक्चर हमारा है जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि in this structure we have two hexagonal planes. These hexagonal planes are known as plane A, and there is one triangular plane in between. If height of unit cell is C, अगर मान लो C unit cell का height है, height of unit cell अगर C है, तो triangular layer कहाँ पर है? C/2 from each hexagon. दोनों hexagonal layers से distance C/2. So in this structure we have unit cell, hexagonal unit cell, which has two hexagonal planes A separated by distance C, and there is one triangular plane exactly in the middle of these hexagonal planes. Exactly middle में है hexagonal planes के बीच में. अब hexagonal unit cells अगर हम लोग देख रहे हैं ये वाला closed packed hexagon, इसमें जो inner तीनों atoms हैं, जो yellow color से atom दिखा रहे हैं triangular layer पे, they are lying inside the hexagonal unit cell. ये completely lie कर रहे हैं inside the hexagonal unit cell. Okay, ये completely पूरी तरह से hexagon के अंदर है. And there are two face centers. We have two face center atoms, एक face center ऊपर layer में और एक नीचे के hexagonal layer में. And there are three inner atoms, 12 corners. We have 6 corners in upper hexagonal layer, 6 corners in lower hexagonal layer. Total 12 corners, 2 face centers, 3 inner atoms, 3 inner atoms. Total मिलाकर के atoms का नंबर 6 हो जाएगा. इसको हमने कैलकुलेट किया. So इस पे कोई स्लाइड पे कुछ पूछना हो तो आप प्लीज पूछ लेना. मैं इसको जस्ट शो करता चला जाता हूं कि क्या डिस्कस किया लास्ट क्लास में. Then we have discussed about the number of atoms. Each corner atom contributes into 6 unit cells. So corner atom contribution क्या होगा 1/6 unit cell. एक unit cell में कितने atoms होंगे? 12 multiplied by 1/6 contribution per unit cell corner का है. Face center 2 unit cell में कंट्रीब्यूट करता है इसलिए 1 unit cell में उसका होता है. तीनों inner atoms हैं. तीनों inner atoms कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो. So we have 12 multiplied by 1/6 2 into 1/2 plus 3 into 6 atoms per unit cell. ये unit cell इसका बना हुआ है. ये भी उसी का unit cell है. जस्ट मैंने ड्रॉ करने का ट्राई. There is relation between ABC and R. A is equal to B is equal to 2R. ये तो हमने हेक्सागन में भी देखा था, 2 डायमेंशन में, यहाँ 3D में भी देखा. C/A रेशियो इज अ स्पेसिफिक रेशियो बिटवीन C and A. देयर इज अ फिक्स्ड रेशियो. अगर ये C/A रेशियो 1/8/3 के पास अराउंड है, तब इसको लोग आइडियल हेक्सागनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. आइडियल हेक्सागनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इसको कब बोलेंगे? जब ये ABC और R में इस तरह का रिलेशन. ओके, अदरवाइज ये हेक्सागनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर नहीं होगा. ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग का मतलब है 74% पैकिंग. क्लोज्ड पैकिंग का मतलब है मोर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स. नियरेस्ट नेबर्स का नंबर ज्यादा होगा कभी पैकिंग ज्यादा होती है, और पैकिंग ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ज्यादा होगा. इंक्रीजिंग इन सिमिलर मैनर. अगर पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा. सो ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 6 C/A रेशियो 1/8/3 एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स. हमने यहाँ पर दो हेक्सागनल क्लोज्ड पैक का यूनिट लिया. दोनों हेक्सागनल यूनिट सेल्स में एक कॉमन फेस है जिसका सेंट्रल एरिया डिफरेंस है. नाउ इन द सेम प्लेन वी हैव 6 नियरेस्ट नेबर 1 2 3 4 5 6. these atoms are available at 2R is equal to A distance. 2R या A distance equal है. 2R is equal to A distance पर ये atoms available है. 6 atoms in the plane, 3 atoms अपने upper unit cell and 3 atoms in lower unit cell. Triangular वाले 2 atoms हैं actually nearest neighbor में कंट्रीब्यूट करेंगे. So we have 12 nearest neighbors. 3 plus 6 plus 2. Okay, 3 plus 6 plus 2. Total 12 nearest neighbors. Distance है A equal to 2R. Second neighbors, अब सेम फेस सेंटर के ऊपर ग्रीन कलर का फेस सेंटर ऊपर के प्लेन का हेक्सागनल प्लेन का नीचे हेक्सागनल प्लेन का फेस सेंटर. These are two second neighbors. The distance from the second is C. इनकी डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर से थोड़ा सा ज्यादा होगी. ऑफ कोर्स सेकंड नेबर तो होना ही पड़ेगा. एंड दैट इज C. C की वैल्यू एक टर्म में अगर देखें तो C इक्वल टू √8/3 टाइम्स A है ना. C इक्वल टू √8/3 टाइम्स A. तो ये नियरेस्ट नेबर सेकंड नेबर होगा. थर्ड नेबर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कैलकुलेट. फिर मैंने C और A का रेशियो बताया जिसको कि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट किया था. अगर इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ लेना, अदरवाइज मैंने जस्ट ये स्लाइड आपको पीडीएफ बना के सेंड किया था. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं. अगर आप लोग भी इंटरेस्ट होंगे पूछेंगे तो मैं इसको जरूर बता दूंगा. एक में बता दूं या आप भी बता दूं, डिसाइड करना आप लोग. So now we have a atomic packing fraction. Effective number of atoms total 6 atoms per unit cell. Volume of each atom, atoms are treated as solid sphere, so their volume will be 4/3 pi r cube. Atoms को solid sphere treat करोगे, solid sphere का volume क्या होता है 4/3 pi r cube. And numerator में तो ये हो गया volume of all atoms 6 atoms total volume ऊपर हो गया. Volume of unit cell, volume of unit cell 6 into √3/4 a square c. 6 times area of equilateral triangle multiplied by times height multiply करना पड़ेगा total volume. पहले तो हेक्सागन का एरिया निकालना है. हेक्सागन का एरिया क्या होगा? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया. ट्रायंगल का एरिया जिसकी साइड A हो उसका एरिया होता है √3/4 a square. 6 से मल्टीप्लाई किया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कर दिया. अब R इज इक्वल टू A/2 होता है. यहाँ जो न्यूमरेटर में वॉल्यूम न्यूमरेटर में R क्यूब है, R क्यूब को लिखेंगे A/2 होल क्यूब है ना. A/2 होल क्यूब लिख दिया, पुट कर दिया और इससे फिर पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा pi/2. वैल्यूज को रिलेट करते हुए C की वैल्यू भी √8/3 टाइम्स A लिखा, A कैंसिल हुआ, √2 कैंसिल हुआ. नाउ वी आर हैविंग दिस pi/2 = 0.74. दिस इज 74% पैकिंग. हेक्सागनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर का पैकिंग है 74%. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स में जिंक, कैडमियम, हीलियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आप देख सकते हैं. जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, हीलियम एक्सेट्रा. These are the examples. These elements are existing in a hexagonal closed pack structure. Already पता है closed pack नाम में इन्वॉल्व है. तो स्टूडेंट्स ये हमने पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह देखते हुए आपको ध्यान रखना है. क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर दो है हमारे पास. एक का नाम है फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, और एक का नाम है हेक्सागनल क्लोज्ड पैक. फेस सेंटर क्यूबिक को हम लोग क्यूबिक क्लोज्ड पैक भी बोलते हैं. पता ही होगा आपको क्यूबिक क्लोज्ड पैक. दोनों का 74% पैकिंग है. दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन 74 है. दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12. ठीक है, 12. आप कह सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन विल बी सेम, देयर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विल बी सेम. ये दो कॉमन इंफॉर्मेशन है फेस सेंटर क्यूबिक और हेक्सागनल क्लोज्ड पैक में. ये दो इंफॉर्मेशंस कॉमन है. ठीक है स्टूडेंट्स, यस बताएं प्लीज. सर उसमें बुक्स में स्टडी मटेरियल में उसमें तो वो C/A रेशियो जो है वो ट्रायंगल का कुछ मतलब पाइथागोरस प्रमेय करके निकाला गया है, वो नहीं समझ में आ रहा थोड़ा. पाइथागोरस के बिना तो निकलेगा नहीं, तो बात ये है. कौन सी बुक फॉलो कर रहे थे सर? स्टडी मटेरियल है एसओ पिल्लई में भी है थोड़ा. अच्छा, मैंने आपको ये बोला कि जो आप यहाँ इमेजिन कीजिए कि एक ट्रायंगल है. ठीक है, इस ट्रायंगल को ऊपर ग्रीन और नीचे रेड कलर के फेस सेंटर से ज्वाइन करो. इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करो जो कि इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर हो. इस ट्रायंगल पर होना चाहिए परपेंडिकुलर. ज्वाइन किसको करेगा? ऊपर के फेस सेंटर, नीचे के फेस सेंटर. बात समझ में आ रही? यस सर. बीच में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल से एक लाइन पास करेगी जो कि ऊपर वाले फेस सेंटर और नीचे वाले फेस सेंटर को टच करेगा, कांटेक्ट करेगा. अगर इसमें से नहीं समझ में आ रहा है, इसमें बहुत सारा डिजिट्स लिखा है, तो आप इसको इस वाले में देखिए. ठीक है, आपको ऊपर फेस सेंटर को नीचे के फेस सेंटर से ज्वाइन करा देना. ठीक है, बात समझ में आ रही? दोनों फेस सेंटर ज्वाइन. ये फेस सेंटर जब ज्वाइन होंगे तो ये ट्रायंगल को कहीं पर
करेंगे, ट्रायंगल से पास करेंगे। ट्रायंगल है परपेंडिकुलर, इस लाइन को, इस जो रेड लाइन मैंने दिखाया, इसकी हाइट टोटल सी है, सी है ना इसकी हाइट, इसी हाइट का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसका परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल का। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ना ये, तो यहाँ से आप एक सेंट्रॉइड है ये, ध्यान दीजिए सेंट्रॉइड है, एंड ए बी सी मान लो ये ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, बीच में जो सेंटर में ट्रायंगल बना हुआ था बी, और ये सेंट्रॉइड माने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बी का बाइसेक्टर बीडी ड्रॉ किया, बीडी को बीई किस रेशियो में कट करेगा, बी की वैल्यू बीडी के साथ रिलेट करो, 1/2 रेशियो 2/3, 1/2 हो गया, बी इक्वल टू टोटल बीडी की लेंथ का 2/3 है कि नहीं है, 2/1 रेशियो होता है कि नहीं होता पहले, यस सर होता है ना। तो जो एंगल बाइसेक्टर है वो सेंट्रॉइड अगर उसका ज्वाइन हो रहा है एंगल बाइसेक्टर पर, तो सेंट्रॉइड जो है एंगल बाइसेक्टर को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बी की लेंथ हो जाएगी 2/3 बीडी, बीडी क्या है, व्हाट इज बीडी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, एंगल क्या होगा यहाँ 30 डिग्री, ये डी है, बीडी की लेंथ बताना क्या आएगी, सभी का साइड ए है, बताओ लेंथ ऑफ बीडी, a cos 30 वैल्यू बताओ cos 30 का रूट करके, a root 3/2 और a root 3/2 यस, तो 2/3 into a by a root 3/2 है ना, 3 root 3 एक रह जाएगा 2, क्या आया a by 2, ठीक है। b का लेंथ आ गया a by root 3, क्लियर, देख लीजिए b का लेंथ कितना आया a by root 3, इस पॉइंट से जो ये सी मान सी नहीं ओ पॉइंट है, इस ओ से कोई का लेंथ क्या होगा ना, कोई c/2 होगा, ये पूरा हाइट सी लिखा होगा भाई, तो ट्रायंगल तो मिडिल में है ना एग्जैक्टली, ये हाइट सी है तो c/2 होगा ना, यहाँ इस सेंट्रॉइड की दूरी ओ से कोई इक्वल टू होगा ना बीडी वैल्यू क्या होगा, root 3 a/4 होगी ना, कैसे कैसे ad सर a/2 होगी, तो cos 30 = root 3/2। आपको कैसे पता, आपको पता है कि एडी क्या है a/2 है, यस सर, देख लीजिए आप साइन लगा रहे हो कोसाइन लगा रहे हो, ध्यान देना, cos लगा रहा हूं सर, cos लगा रहे हो तो cos 30 कितना हुआ, root एडी 3/2 क्यों ले रहे हो, एडी क्यों ले रहे हो आप, आपको बीडी निकालना है, ओके सर, आपको बीडी निकालना है, आप एडी लेके बैठे हो, एडी तब लगेगा जब साइन 30 निकालोगे, ठीक है, एक छोटा मोटा मिस्टेक आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई का वैल्यू c/2 है कि नहीं ये बताओ, यस सर, एक b का वैल्यू a/3 आया कि नहीं आया ये बताओ, यस सर, अब ऊपर ये यूनिट सेल देखो, ये फेस सेंटर है ऊपर वाला, इस फेस सेंटर से साइड वाले एटम का डिस्टेंस कितना होगा बताना, ये ओबी हाँ वो भी कितना होगा पूछ रहा हूं मैं, वो भी क्या होगा, वो भी a होगा, अभी तो नियरेस्ट नेबर में उसको इंक्लूड करोगे आप, यस सर, 12 नियरेस्ट नेबर में b वाला एटम भी है, ये abc तीनों एटम्स है ना 12 में इंट्रीब्यूशन में, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यहाँ ये सेंट्रॉइड है, ये कॉर्नर एटम है और ये फेस सेंटर, चलिए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, इसके लिए लगा रहे हैं BE OBE के लिए, OEB के लिए क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर a स्क्वायर विल बी इक्वल टू c/2 होल स्क्वायर प्लस a by होल स्क्वायर, देखो कितना आता है, a स्क्वायर इक्वल टू c/2 होल स्क्वायर प्लस c/3 होल स्क्वायर, चलिए चेक करो, c बाय a रेशियो इक्वल टू अंडर रूट 8/3 आ गया, यस सर, यस सर यही इसका मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, जस्ट समझने के लिए आपको क्लोज पैकिंग लेना पड़ेगा, और क्लोज पैकिंग लेने पर ही ट्रायंगल वाला जो सेंटर होगा सेंट्रॉइड होगा ट्रायंगल का, सेंटर में ट्रायंगल जो प्लेन बना हुआ है ऊपर के फेस सेंटर से वो c/2 डिस्टेंस होगा, ठीक है, c/2 a बाय इस तरीके से नीचे वाले से भी तो निकाल सकते हैं, जो नीचे वाला वो एटम है, किसी से निकालो फेस, वो भी तो फेस सेंटर ये कुछ और है वो, यस सर, सिमेट्रिक ट्रायंगल बनेगा ना, जस्ट अपोजिट यस सर, है ना, आप इसी से निकालो, यहाँ ऊपर दिख रहा था फेस सेंटर इस यूनिट सेल में इसीलिए बने सब में, तो ये सारा कुछ बना के कुछ नोट कर रहे हो तो बताओ, निकाल दो सर क्वेश्चन था बोलिए, सर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर की रेंज क्या होगी, रेंज मतलब नहीं समझा मैं, रेंज किस सेंस में, मतलब जैसे कि इसकी 74% जैसे निकला है हमारा एग्जाम ना, तो इसको क्लोज पैक बोल दिया, तो जैसे कि और जो हमारे और निकले तो उनमें 52% निकली या 56, तो उसमें जैसे सिंपल क्यूबिक में निकली थी, तो उसकी पर्टिकुलर रेंज होगी कि इस रेंज से रेंज तक लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। मैंने आपको बताया क्लोज पैकिंग का मतलब है नियर अबाउट 74 73.5 73 को भी आप क्लोज पैक में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 73 74 के अराउंड रहेगा मींस क्लोज पैक है, इससे लोअर रहेगा लूज पैक होगा, ठीक है, लोअर मतलब बहुत लोअर 70 के अराउंड है, 68 के अराउंड है तो क्लोज पैक है, लेकिन ऐसा आ जाए जैसे लमसम में बोल सकते हो कि हां 73 के अराउंड है तो 74 इंक्लूड कर लें, हां मान लो क्लोज पैक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो 74 पैकिंग है उसी को आप क्लोज पैक बोल रहे हैं, और उसके अराउंड वैल्यू आएगी तो भी तो क्लोज पैक बोलना पड़ेगा ना, वैसा तो है नहीं कि बहुत लोअर वैल्यू है 68 65 68 75 ये सब डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो 68% को आपने लूज पैक में ले रखा है, उसमें और चांसेस है पैकिंग के, व्हाट इज इंटर क्यूबिक में चांसेस है पैकिंग के, और पैक हो सकता है 7% और 6% और ऊपर जाएगा तब वो क्लोज पैक के नियर अबाउट हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि क्लोज पैक के लिए 74% के अबाउट वैल्यू चाहिए, अगर मान लो डेसिमल में आता है कोई नैनोमीटर कुछ वैल्यू सी की वैल्यू ए की वैल्यू नियर अबाउट पे भी अगर 74 पहुंचा है तो भी वो हम लोग क्लोज पैक ही बोलेंगे, ठीक है, हो सकता है ना कई बार, अभी तो आइडियल केस है, प्रैक्टिकल केस थोड़ा सा अलग होता है, प्रैक्टिकल केस में वो 73.5 आ गया 73.2 आ गया 73.8 आ गया, हमें सबको 74 लेना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय आप ए बी सी की वैल्यूज, अब ऐसा नहीं है कि 8/3 आएगा, इसका वैल्यू 1.63 आ जाए 1.66 आ जाए 1.64 आ जाए 1.62 आ जाए, क्योंकि मेजरमेंट आप इससे करोगे, एरर जरूर होगा, एरर होगा तो 2-4% ऊपर नीचे तो चलेगा ना, यस सर, यस, तो ऐसा कोई रेंज नहीं है वेरीफाइंग, बट 74% से अबव पैकिंग पॉसिबल नहीं है, 74% के नियर अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन पॉसिबल है तो क्लोज पैक हो जाएगा, और इससे इतना सफिशिएंट बिलो कि 5% 10% बिलो पैकिंग फ्रैक्शन हो देन इट विल बी कॉल्ड एज लूज पैक, चाहे सिंपल क्यूबिक हो बॉडी सेंटर हो कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका वो लूज पैक में आएगा, सर यस सर ये नियरेस्ट नेबर जो एटम है उसमें लास्ट स्लाइड में दिखाई उसमें रेफरेंस एटम से जो इनर एटम की डिस्टेंस ए होगी वो कैसे पता लगेगा, इसकी डिस्टेंस रेफरेंस एटम की डिस्टेंस जो है वो इनर एटम से, ऊपर इमेज में दिख रहा है, ये दिख रहा है कुछ, ये डिब्बा दिख रहा है आपको,
सोचिए कि बीच में 3 स्फीयर्स भरे हुए हैं, 3 स्फीयर दिख रहा है, 1 2 3 और ऊपर जो हाफ ऐसे लगा हुआ है, हाफ ही दिख रहा है यूनिट सेल में, तो पूरा वो लेकिन दिख रहा है हाफ, ऐसा लग रहा है ना कि 3 रखे हुए हैं और इनके ऊपर एक रखा हुआ है यस जो कि ऊपर का फेस सेंटर है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? आ रहा है। तीनों इनर एटम्स के जस्ट ऊपर, जैसे मान लो 3 स्फीयर्स हो, तीनों स्फीयर्स आपने कैसे अरेंज किए, 3 स्फीयर 1 2 3, इसके ऊपर चौथा ऐसे रख दिया, चौथा को इसके ऊपर रखना है, वही चौथा जो है वो फेस सेंटर है और वो तीनों क्या है, ट्रायंगल वाले हैं, ऊपर ये फेस सेंटर वाला ऐसे रखा हुआ है। कॉन्टेक्ट में तो है ना, दिखता है ना यहाँ, ये इमेज इसीलिए लिखा हुआ है 3D वाला इमेज है भाई, 3D वाला ऊपर का हाफ हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर जो है, नीचे हेमिस्फीयर है और बीच में तीनों एटम्स जैसा आपको दिख रहा है वो दिख रहा है। नहीं समझ में आया? भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसके पीछे एक हेमिस्फीयर एटम ऐसे है और यहाँ भी एक हेमिस्फीयर एटम ऐसे है जो कि फेस सेंटर ऊपर के लिए था, नीचे के लिए था, और बीच में 3 एटम्स इसके ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है, तीनों का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, क्लोज पैकिंग है, इसीलिए ऊपर का फेस सेंटर इन तीनों एटम्स को भी टच करेगा जो नीचे ट्रायंगल में है, अपने प्लेन में से 6 एटम्स हैं, अपने से ऊपर भी 3 एटम्स इसके पास नियरेस्ट नेबर्स होंगे, टोटल मिलाकर के 12 नियरेस्ट नेबर्स हो जाएगा यार, इमेज में दिखा है ऐसे। क्लोज पैकिंग का कांसेप्ट लगाया ना, ऊपर के फेस सेंटर से इस साइड वाले ट्रायंगल के एटम का या इस ट्रायंगल के सेंटर का, इस ट्रायंगल के सिस्टम का एक डिस्टेंस को लिया सकता, अभी तीनों का एक डिस्टेंस लिया था ना, एक्चुअली टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, ऊपर का जो फेस सेंटर है तीनों ट्रायंगल का है, सेंटर्स के साथ टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, टेट्राहेड्रॉन तो पहले भी दिखाया था ना मैंने, अपर लेयर का फेस सेंटर नीचे ट्रायंगल के तीनों एटम्स के साथ टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, चारों एटम्स इस तरह से कांटेक्ट में होंगे, और अगर इसका ट्रायंगल ले लिया नीचे फेस सेंटर से लोगे तो उससे भी टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे, ठीक है, तो 2 टेट्राहेड्रॉन एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं ट्रायंगुलर सरफेस पर, 2 टेट्राहेड्रॉन एक ट्रायंगुलर सरफेस पर ज्वाइन हो रहे हैं, तो ट्रायंगुलर सर्कल लेयर वाला ये वाला है, यहाँ का ट्रायंगल, ऊपर के एटम से ये तीनों ज्वाइन हुए, नीचे के एटम से भी ये तीनों ज्वाइन हो गए, ठीक है, तो जस्ट इमेज में इतना साफ सुथरा नहीं बनाओ कि ये विजुअलाइज हो सकता है इस 3D में से। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 74%, 12 नियरेस्ट नेबर, सेकंड नेबर 2, डिस्टेंस इनकी ए और सी होगी, ये सारी चीजें बात हो गई, इस इमेज इसमें मैंने वो एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं बात कर रहा था आपसे ए बी सी डी ई या जो भी है इस तरह का, ठीक है, कुछ थ्योरम्स वगैरह 9th 10th तक आ ही जाती है, समझ में नहीं आता उसमें कि क्या यूज है, अब जब स्ट्रक्चर आता है तो समझ में आता है, तो यहाँ यूज कर रहे हैं उसको हम लोग। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे सॉल्व करने का मैंने लास्ट क्लास में बोला था, दिस क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम द एचयूआर समर एग्जाम्स, इसमें आंसर बताओ, जिंक क्रिस्टलाइज हो रहा है एचसीपी में, तो सी क्या होगा, हाइट ऑफ यूनिट सेल विल बी सी, सी विल बी इक्वल टू √8/3 टाइम्स ए एंड दिस इज इक्वल टू √8/3 टाइम्स 2r, कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन, तो हाइट ऑफ यूनिट सेल मतलब सी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है मैग्नीशियम हैज एचसीपी स्ट्रक्चर, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 1.1605 नैनोमीटर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल is equal to 6 times area of equilateral triangle multiplied by height t, this is equal to √3/4, 6 multiplied by √3/4, a is equal to 2r square multiplied by 6, मतलब √8/3 times 2r, पिछले क्वेश्चन में देखा था ये, ठीक है, तो देखते हैं कैंसिल आउट होता है या नहीं होता, उसके बाद फिर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से √3, यहाँ से √3 कैंसिल आउट होगा, 6 4 4, यहाँ से 2 into 2 4 4 4 कैंसिल, यहाँ से 2 √2 आएगा, एक 2 यहाँ से है, 6 into 12 24 √2 r cube 24 1.414 multiplied by 0.1605 10 raised to the power -9 4 cube, चलिए कीजिए सॉल्व, मीटर क्यूब में चाहिए था आंसर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, चलिए आंसर बोलिए, ऑप्शन सी 1.4, yes 1.4 10 raised to the power -28 मीटर क्यूब, सी ऑप्शन, इसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हाइट ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, ये भी 2013 में आया, सी बाई ए रेशियो √8 बाय ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यस, अलग अलग फॉर्मेट में एक ही वैल्यू पूछा जा सकता है कि सी बाई ए रेशियो, हाइट ऑफ यूनिट सेल, सी वैल्यू या आर के साथ कैसे रिलेटेड है, ए के साथ कैसे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर, प्रीवियस स्लाइड कर लीजिएगा सर। बताओ क्या आपको पूछना है? नो सर, वो नोट डाउन करें सर, इसके भी यस सर, हो गया? यस सर। तो इस क्वेश्चन में ए बी टाइप स्ट्रक्चर क्या है, आपने देखा कि जो यूनिट सेल है उसमें ऊपर हेक्सागन, नीचे हेक्सागन, बीच में ट्रायंगल, तो दो हेक्सागन के बीच में एक ट्रायंगल मिलेगा, और इस तरह से आप कह सकते हो कि दो प्लेन ए के बीच में एक प्लेन बी अवेलेबल है, दो प्लेन ए के बीच में एक प्लेन बी अवेलेबल है ना, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ए बी टाइप, ए बी टाइप इसको बोलते हैं, ये बोल देंगे हम लोग एक्सीपी स्ट्रक्चर, जिसमें क्लोज पैकिंग है, दो हेक्सागन लेयर के बीच में ट्रायंगल लेयर आती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए बी टाइप पैकिंग कहां पर होगी, वो होगी क्लोज पैक हेक्सागनल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये है हीलियम एटम्स एट लो टेंपरेचर्स मेक ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागनल लैटिस, ए की वैल्यू है 0.36 नैनोमीटर एंड सी इज इक्वल टू 0.59 नैनोमीटर। आप चेक करोगे कि क्लोज पैक दे रखा है स्ट्रक्चर के नाम में, बट अगर सी बाई रेशियो देखोगे तो √8/3 के नियर होगा, √8/3 के अराउंड आ जाएगा। डेंसिटी पूछ रहे हैं, डेंसिटी क्या होता है, एन इफेक्टिव, हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जब क्यूबिक लिया था तब क्रिस्टल डेंसिटी का फॉर्मूला सीखा है, अब यहाँ पर अगर वॉल्यूम हेक्सागन का होगा तो सिमिलर डेंसिटी फॉर्मूला बन सकता है, सो एन इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय कैपिटल, कैपिटल इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ ए क्यूब नहीं लिखा हूं, हेक्सागन के केस में वॉल्यूम अलग होगा,
डिफरेंट फ्रॉम क्यूबिक। तो अब आप इसमें ये देखिए कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को रखते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स रखें, वैसे कितना होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक में यानी इफेक्टिव क्लोज पैक Six. यस 11 6 एटम 6 एटम्स। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हीलियम? So 4 Four. 4 होता है। देन एवोगाड्रो नंबर वही है। ये 4 क्या है, ग्राम या किलोग्राम? से ग्राम ग्राम पर मोल। दिस इज ग्राम। ग्राम को हमें यूनिट देके किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, ग्राम से किलोग्राम ले जाना पड़ेगा आंसर बताना है। अब साथ में वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इक्वल टू 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल a स्क्वायर 0.36 10 to the power minus 9 whole square multiplied by height is 0.59 मीटर क्यूब। डिनोमिनेटर में है मीटर क्यूब, ऊपर न्यूमरेटर में है किलोग्राम। चलिए बताइए। Is it option D? यस, आंसर विल बी 200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस आंसर इज 200 kg। अब इसी में कुछ वैल्यू आ रही हो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, ऑप्शन डी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट होगा। देखिए सब लोग क्वेश्चन आर इजी, क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिर। A1 A2 A3 एक पैरेलल पाइप बनाएगा, तो वॉल्यूम बताओ उस पैरेलल पाइप का जिसके साइड वेक्टर्स A1 डॉट A2 क्रॉस A3 हो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पैरेलल पाइप मेड बाय दिस थ्री वेक्टर्स A1 डॉट A2 A1 A2 A3। ओके, चेक कीजिए इसका वॉल्यूम क्या आएगा, बताइए मुझे। यस स्टूडेंट, व्हाट इज द वॉल्यूम? रूट 3/2 a square c क्या है? रूट 3/2 a square c √3/2। आप बता सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल है या वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल जो उसके अंदर बना हुआ था? Primitive unit, sir. Primitive unit cell. नॉन प्रिमिटिव नहीं है ना? No, sir. नो ना, सही है। एक्चुअली हेक्सागोनल सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ था लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और उसके अंदर 3 प्रिमिटिव यूनिट्स मैंने बोले थे पैरेलल पाइप के फॉर्म में। हेक्सागन के अंदर था पैरेलल पाइप था ना, है ना? अभी इमेज की बात मैं आगे करूंगा, अभी मैंने बताया इसको। अब ये वॉल्यूम है, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे बताना। इसका स्ट्रक्चर में यहाँ वर्ड लिखा है सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। नंबर ऑफ एटम्स बताना इसमें कितना होगा, इसने इस यूनिट सेल में जैसा वॉल्यूम दिया है। सिंपल हेक्सागन में 3 एटम्स है, One. इसमें तो one इसके अंदर होगा, primitive. इसके अंदर एक ही होगा। यस, इसके अंदर सिंगल वन एटम होगा, एक्सेप्ट वन एटम, यहाँ लिखा भी है देयर इज ओनली वन एटम इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड तीनों वेक्टर्स प्रिमिटिव यूनिट सेल बना रहे हैं, इसलिए नाम लिखा है प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। बिकॉज़ प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर मतलब स्मॉलेस्ट वेक्टर्स जिससे यूनिट सेल बनता हो। प्रिमिटिव का मतलब स्मॉलेस्ट स्टेप्स एक्स वाई जेड एक्सिस में, अगर तीनों एक्सिस दिया हुआ है या जो भी एक्सिस इन्वॉल्व है, ए एक्सिस के अलोंग ए डिस्टेंस है, वाई के अलोंग वाई और वाई के अलोंग बी है, इस तरह से आप लिखें। तो आप यहाँ देखोगे कि एबीसी 3 डायरेक्शंस है, तीनों डायरेक्शंस में छोटे-छोटे स्टेप्स जो है प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर कहे जा रहे हैं, और वो वेक्टर्स A1 A2 A3 से लिखेगा। तो क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है, स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम रखेगा, तो हम लोग उसको नंबर ऑफ एटम्स को मिनिमम ले रहे हैं 1, ठीक है। एन इफेक्टिव कैपिटल एन क्या लेना होगा 12 ग्राम पर मोल, यही होगा। नाउ कैलकुलेट द डेंसिटी, इसका डेंसिटी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट √3/4 होगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा √3/4। मैथमेटिक्स अप्लाई करो अच्छी वाली, हो गया? देख लिया, √3/4 2 बार आएगा और बीच में प्लस साइन, इतना देर लगेगा अगर डिटरमिनेंट निकालने में, तो सोचो। डेंसिटी बताओ, चलो सारा कुछ दिया हुआ है, एन इफेक्टिव भी दिया हुआ था, मास ऑफ मोलर मास या मास ऑफ 1 मोल दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर यूज करना है, वॉल्यूम यूज करना है। एन इफेक्टिव कितना है 1, लिमिटिव में 1 है, मास है 12 ग्राम 12 ग्राम। अब यहाँ यूनिट में ग्राम ही देना है, तुम्हें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 6.022 10 to the power 23, ये हो गया Na एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज √3/2 a स्क्वायर c, दैट इज a इज, अब यहाँ देख सकते हो क्लोज पैक नहीं है, इसी वाई रेशियो 2 से भी ज्यादा है, 2.46 10 to the power -2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cc मतलब 6.7 10 to the power -8। चलिए भाई, एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया एंड आंसर करेक्ट है, Option A आ रहा, sir. 0.56। यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
इस तरह से क्वेश्चन में कहीं 3 आइटम्स नहीं लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि ऑलरेडी 1/3 आ रहा है, पूरे यूनिट सेल जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है इसका 1/3 वॉल्यूम आ रहा है, इसलिए उसमें एक ही आइटम आएगा। अगर हम 1 लिखेंगे और वॉल्यूम जो आ रहा है वही यूज करेंगे तो ही करेक्ट रिजल्ट आएगा। और वैसे क्वेश्चन में दे रखा है ओनली 1 आइटम इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, वो स्लाइड देता तो नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाते हैं, एक नहीं रहता वहां पे। इसकी बात मैं डिस्कस करूंगा, सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स 0.56 सबका आया आंसर इसका? यस सर। पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए यस। ठीक है, तो जेएनयू वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं क्लोज पैक वगैरह से रिलेटेड, सिंपल एक्सलेंस से रिलेटेड। आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन जेएनयू के आज भी हमने सॉल्व किया, दोनों हेक्सागोनल की डेंसिटी पर है, क्लोज पैक और सिंपल एक्सलेंस। तो आजकल सीयू वगैरह के भी एग्जाम स्टूडेंट्स देते हैं, तो पहले तो जेएनयू बीएचयू का एग्जाम अलग अलग होता है, फिर मत कर दिया कि पेपर से सवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नहीं टॉपिक अभी नहीं समझिए इसका आंसर तो आप नहीं रहेंगे, ऑप्शन राइट करिए, स्क्रीनशॉट लेना। तो सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन, सॉल्व करो ना, क्यों स्क्रीनशॉट ठीक है करना सर। पड़े ना? सॉल्व करो, अगर खुद का नहीं आ रहा है तो अलग बात है कि चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर कमजोर है, कैलकुलेशन में कमजोरी आ रही है तो उसको स्ट्रांग बनाइए। अब स्क्रीनशॉट लेके छापने का मत ट्राई करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, हिंट देख लो कि कहां से क्या पॉइंट है, किस पॉइंट की हेल्प की जरूरत है, लेकिन खुद के ऊपर थोड़ा सा स्पेशली कैलकुलेट करके इस तरह से सॉल्व कर रहे हो। यस सर। बहुत बहुत स्ट्रांग कांसेप्ट लगा है कि उसको हमको नोट करना ही करना है, नहीं नोट कर पाए तो अलग बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, मैंने उसी को उससे सॉल्व करने में, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा लिखने पर अपने नोट्स में भरोसा रखो। सर ये हाँ बोलिए। इस स्लाइड से ये नोट्स मिल जाएंगे बाद में क्लास के बाद, ये सॉल्यूशंस आपने देखा? आज पहले क्लास है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में कांसेप्ट। एक्चुअली मेरा पांचवा क्लास है इस बैच में, हां इसलिए कह रहा हूं ये स्लाइड्स में सॉल्यूशंस लिख के दे रहे हो, ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशंस, इसके बाद ये सॉल्यूशंस आपको क्लास के बाद लॉगिन आईडी मिलता है, पासवर्ड मिलता है, ऐप में जाओगे, लॉगिन करोगे, पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग इसमें सारे लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स होते हैं, सारे लेक्चर्स अपलोडेड होते हैं पीडीएफ में भी और वीडियो फॉर्मेट में भी, पीडीएफ और वीडियो दोनों में मिलेगा आपको। हाँ, तो एटलीस्ट मुझे लगता है वीडियोस को 2 बार देखने की परमिशन होती है, पीडीएफ ऐसा कोई रूल नहीं है। वीडियोस तो 2 बार ही, हाँ पूरा वीडियो 2 बार, अगर 1.5 घंटे का क्लास हुआ है तो एटलीस्ट 3 घंटे उसको दोबारा देख सकते हो। मतलब 1.5 घंटे तो क्लास में किया ही आपने, 1.5 घंटे तो कोई रोकेगा कि क्लास में 1.5 घंटे में बताओ या 3 घंटे में बताओ, इतना देर क्लास रहेगा, क्लास में रखोगे 1.5 घंटे देखोगे और आफ्टर क्लास आई थिंक 2 बार उसको फुल वीडियो देखने का परमिशन दे दिया जाता है। और पीडीएफ तो दे सकते हैं ना। हाँ पीडीएफ तो कभी भी देखो, पीडीएफ से तो नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स अपना बाद में बैठ और के। स्टडी मटेरियल्स भेज दिए होंगे सबको हाँ, इस इसका मैं सॉल्यूशन नहीं का बता सकता। सॉल्यूशन आप इसके लिए एक बार प्लीज रिसेप्शन से कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैनेजमेंट से आपको परमिशन देते स्टडी हैं। मटेरियल इसी में इंक्लूड है बोले फीस में ऑनलाइन को। मैं कह तो रहा हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशंस आपको कॉल करके मिल जाएगा। हां ठीक है, ठीक है ना? ये एग्जैक्टली किसी स्टूडेंट का भेजा है नहीं भेजा, ये सारी चीजें वहाँ रिसेप्शन पे जो फोन कॉल कर रिसीव करेंगे बता देंगे आपको, नेम से एडमिशन लिया है नहीं लिया है, जो लिया ये होगा मेल में ही आएगा ना वीडियो पीडीएफ का आज का। आपको। मेल में नहीं, मैंने आपको लॉगिन की बात की है। लॉगिन हां कैरियर एंडेवर का ऐप है, ऐप में जाओगे या फिर जैसे भी आपको वहाँ लॉगिन पासवर्ड यूज करना है, देन यू कैन सी योर लेक्चर्स, जो लेक्चर्स हो चुके हैं, जो लेक्चर्स होने वाले हैं। मेरा लॉगिन बनाया कि नहीं मालूम मेरे को, मैंने उस फॉर्म भरा है और देखना पड़ेगा उसमें। आपको मैं वही बोल रहा हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन रिसेप्शन से एक फोन कॉल पर मिल जाएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि लैटिस और बेसिस का कांसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए। इन सिंपल हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी हैव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है ना? हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात अगर करें तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ई, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल ई, एटम्स भी 3 है, लैटिस पॉइंट्स भी 3 है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? वी कैन से दैट ईच लैटिस पॉइंट हैज सिंगल वन एटम, एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम है, वो यही यूनिट सेल है। इसी यूनिट सेल में 3 एटम्स दिख रहे हैं आपको, इसी यूनिट सेल में 3 लैटिस पॉइंट्स भी हैं, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ मोनो एटॉमिक बेसिस है और लैटिस ऐसा सिंपल हेक्सागोनल लैटिस। देयरफॉर वी कैन से दैट सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जहां पर फिजिकली एटम्स होगा उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं और जहां लैटिस पॉइंट्स होता है उसको लैटिस बोलते हैं। तो सिंपल हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज सिंपल हेक्सागोनल लैटिस एंड इट्स बेसिस इज मोनो एटॉमिक बेसिस। बात समझ में आई? यस सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में सिंपल हेक्सागोनल लैटिस ली गई है, लैटिस पॉइंट्स पर एक एटम रखा गया है और इस तरह से हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। 3 एटम्स पूरे यूनिट सेल के अंदर है, पूरा यूनिट सेल अगर 3 लैटिस पॉइंट रखेगा तो उसको नाम देते हैं नॉन प्रिमिटिव। बात समझ में आती है? नॉन प्रिमिटिव की प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव समझ में आता है? यस। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पर भी अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं जस्ट इतना बता रहा हूं बेसिस क्या है, लैटिस क्या है, क्रिस्टल क्या है। सिंपल हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज मोनोटॉमिक बेसिस एंड इट्स लैटिस इज सिंपल हेक्सागोनल लैटिस। ऑफ कोर्स क्लियर है, सिंपल हेक्सागोनल यहां भी सिंपल हेक्सागोनल, ये स्ट्रक्चर है, ये लैटिस है। तो इसका मतलब हुआ कि एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम रखोगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, लैटिस पॉइंट रहेगा तो लैटिस है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 6। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं? 3। क्या 3 लैटिस पॉइंट्स समझ में आ रहा है आपको? अच्छा आप ये बताओ कि हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल मैंने एक्सप्लेन किया, हेक्सागोनल 3D में कितने लैटिसेस थे? नंबर ऑफ लैटिसेस कितने लैटिसेस मैंने एक्सप्लेन किया था वहां? हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशन पर डिस्कस किया, हाउ मेनी लैटिसेस वर? हां 3 3 लैटिस थे। कौन कौन से लैटिस? लैटिस पॉइंट है बोल रहा हूं मैं, लैटिस पूछता हूं, हाउ मेनी लैटिसेस वर डिस्कस्ड इन हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर? 2 है लैटिस डिस्कस किए थे, एक हेक्सागन सिंपल वाला, क्लोज्ड वाला। लैटिस का स्ट्रक्चर लैटिस मैंने 14 बोला था, टेबल बनाई थी, उस टेबल को देख के बताओ कितनी लैटिस है हेक्सागन के नाम पे। सर एक ही है सिंपल। स्ट्रक्चर 2 बना लैटिस एक समझ में आई? लैटिस एक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2 है, जो दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस कर रहे हैं यहां पर क्लोज पैक, इसमें भी लैटिस सिंपल हेक्सागोनल लैटिस है, लैटिस पॉइंट 3 ही है यहां पर, ठीक है? लेकिन एटम्स कितने हो गए? ठीक है सर इसमें लैटिस पॉइंट्स ये जो डायग्राम है ये इसी का है यूनिट सेल का हेक्सागन। हेक्सागोनल क्लोज पैक आपको क्या लग रहा है? क्लोज पैक है कि नहीं है? इसको पढ़ना पड़ेगा ना स्टार्टिंग से। आपका फर्स्ट डे है ना, इसलिए फर्स्ट डे तो पहले यूनिट सेल सबसे पहले मैंने क्लोज पैक आपको मैं जरूर ये बोलूंगा कि आप पिछली क्लासेस की वीडियोस प्लीज एक बार देख लीजिए, एक 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, टाइम लगेगा, इतना आ जाएगा, ठीक है? बहुत सारे आवर्स बीत चुके हैं ऑलरेडी, 8-7 घंटे। ये लैटिस पॉइंट्स क्या होता है इसमें?
वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। दूसरे लोगों को लगेगा कि मैं फिर से पहला लेक्चर बढ़ाने लगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो अब ये लैटिस पॉइंट, बेसिस, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। जस्ट इस टॉपिक के लिए, इस पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूँ। जो रेड कलर से पॉइंट्स दिखाया गया आपको देखने में हो रहा होगा, रेड कलर के पॉइंट्स दे आर एक्चुअली लैटिस पॉइंट। स्टूडेंट्स रेड कलर के पॉइंट्स देख के बताओ कि ये लैटिस कैसा लैटिस है। ओनली रेड कलर के पॉइंट्स देखना, छोटे-छोटे पॉइंट्स बना के ब्लैक कलर के एटम के ऊपर, ऐसा लैटिस है ये। सिंपल सिंपल हेक्सागोनल लैटिस है, सिंपल हेक्सागोनल लैटिस है। एंड रेड कलर के लैटिस पॉइंट्स का नंबर कितना होगा टोटल यूनिट सेल में? हाउ मेनी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल? 14 अरे 12 तो कॉर्नर हुआ ना, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बना 5 से, तो फेस सेंटर हुआ कितना हुआ? 3 ओनली 3, ठीक है। और अगर एटम्स की बात करूं तो कितने ब्लैक कलर के कितने एटम्स दिख रहे हैं पूरे यूनिट सेल में? ब्लैक कलर के एटम्स 6 वाई, बिकॉज़ नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स। तो 12 कॉर्नर्स, 12 into 1/6 प्लस 2 फेस सेंटर्स 2 into 1/2 प्लस 3 इनर एटम्स। व्हाट इज नंबर? ये ऊपर लैटिस पॉइंट दिखाया है, लैटिस पॉइंट में 3 इनर एटम्स नहीं इंक्लूड किया, वो लैटिस पॉइंट था ही नहीं। देखिए लैटिस थी ना हमारे पास सिंपल हेक्सागोनल, उसमें तो ट्रायंगल, बीच वाला ट्रायंगल नहीं था लैटिस पॉइंट्स बताते समय, लैटिस बताते समय, ठीक है। तो देयर इज नाउ 6 एटम्स। जब लैटिस पॉइंट्स 3 है, एटम्स 6 हैं, तो डायटोमिक बेसिस से ये क्रिस्टल बनेगा। इसके लिए डायटोमिक बेसिस चाहिए, समझ में आई बात? वी नीड डायटोमिक बेसिस टू पुट एट ईच एंड एवरी लैटिस पॉइंट। ईच एंड एवरी लैटिस पॉइंट पर दो एटम्स का बेसिस रखोगे, तब ये स्ट्रक्चर सिंपल हेक्सागोनल लैटिस शो कर सकता है। क्लियर? तो आप यहां कैसे कहते हो कि हेक्सागोनल कोच स्ट्रक्चर हैज सिंपल हेक्सागोनल लैटिस एंड इट्स बेसिस हैज 2 एटम्स। इट हैज 2 एटम बेसिस, ठीक है। इसके पास 2 एटम्स का बेसिस है, इट हैज 2 एटम बेसिस। क्लियर? ये तो समझ में आया ना कि 6 और 3 रेशियो 2 है ना, तो 2 एटम का बेसिस होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। ओके, सो आप लैटिस पॉइंट मान लो यहां ले रहे हो, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है। इस पर एक एटम तो यहीं पर रख दिया, दूसरा एटम ट्रायंगल वाले पे रख दिया, ठीक है। 2 एटम कैसे रखा? मतलब अब एक एटम को तो एज लैटिस पॉइंट पर रखना है, दूसरा एटम कहां होगा? उससे a डिस्टेंस पर एडजस्ट करेगा और वो ट्रायंगल वाला एटम, इनर एटम ट्रायंगल वाला। बस समझ में? इस यूनिट सेल में 3 एटम इनर पे है और 3 है कॉर्नर और फेस सेंटर पर। ये दिख रहा है आपको? 3 इनर, तो कॉर्नर और फेस सेंटर पर जितने एटम्स हैं 3, उतने ही इनर एटम्स हैं। एक कॉर्नर को एक फेस सेंटर के साथ बेसिस बनाने में यूज कर लो, एक फेस सेंटर ये कॉर्नर को एक इनर एटम के साथ बना लो। जैसे मैंने ये कॉर्नर को लिया और ये ट्रायंगल वाले का ले लिया इनर एटम, ये फेस सेंटर लिया, यहां भी एक लिया ऐसे, ये कॉर्नर लिया, इसके लिए भी ट्रायंगल। ये 3 एटम्स तो जो ट्रायंगल वाले हैं, किसी न किसी एटम के साथ एसोसिएट करके बेसिस बना दिया। तो आप कह सकते हो कि दीस 2 एटम बेसिस आर प्लेस्ड एट 2 कॉर्नर्स एंड 1 फेस सेंटर। दिख रहा है ना आपको? एक फेस सेंटर और 2 कॉर्नर पर ये 2 एटम बेसिस रखा गया है। नहीं समझ आया? एक लैटिस पॉइंट पर 2 एटम रख सकते हो, एक एटम लैटिस पॉइंट पर लाई करेगा, एक उससे एक डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ है, ट्रायंगल में जा रहा है वो। यस सर। यस सर। ये वैसे ही जैसे एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी कंधे पे बैठ के चला जाए मेला देखने के लिए। मेला देखने समझ जाते हो ना, बच्चे को बैठा लेते हैं पिताजी लोग से पे। आज के जमाने में नहीं होता, पहले जमाने में होता था। या एक बाइक पर 2 लोग बैठ जाओ, कि सिंगल सीटर की हमने 2 एटम्स की सवारी करा दी। तो सेम वैसे ही सिंगल लैटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम्स। वन एटम एट हेक्सागोनल लेयर, वन एटम एट इन द ट्रायंगुलर लेयर। ट्रायंगुलर लेयर में एक एटम है और एक एटम हेक्सागोनल में, इसलिए 2 एटम। यस सर इट मींस मतलब हेक्सागन में सिर्फ एक ही लैटिस होता है, सिंपल हेक्सागन, और अगर उसमें इंटरस्टिशियल पोजीशन में एटम्स आ जाएंगे डायटोमिक बेसिस है तो हेक्सागन क्लोज पैक दिखाने लगता है। यस यस यस। और आप देख रहे हैं कि इनर एटम जितना है, इनर एटम कितने हैं? तो पूरे यूनिट सेल में 3 और फेस सेंटर कॉर्नर मिला के कितना हुआ? ये भी 3 है। तो कोई कॉर्नर फेस सेंटर का एटम ले लो और कोई इनर एटम, दोनों को जोड़ करके बना दो, ये इससे एसोसिएटेड बेसिस है। बात समझ में आई? एसोसिएटेड इनर एटम के साथ एक एक कॉर्नर या फेस सेंटर होगा, तो किसी को किसी के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो। ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ दिस बेसिस विल बी यूनिक फॉर होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए जो ये बेसिस होगी ये यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आप इसको इस तरह से रिलेट कर रहे हो, दूसरी तरह इसको इससे रिलेट कर दिया, तीसरी जगह पे इसको इससे रिलेट कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। अब अगर किसी प्लांट खेत में जाओगे, खेत में पेड़ पौधे जितने भी लगे रहेंगे सबका ओरिएंटेशन तो एक ही तरफ होगा ना। झुकाव कि पता चला एक तरफ ऊपर से नीचे की तरफ प्लांट लगा हुआ है और दूसरे में गए तो ये इस तरह से घूम गया है और तीसरे में गए तो ये इधर घुमा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। पूरे यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम्स का बेसिस आप दिखा रहे हो उसका डायरेक्शन पूरे क्रिस्टल में इस तरह से बेसिस जितना भी दिखाओगे सबका ओरिएंटेशन सेम होगा। ओरिएंटेशन समझते हो आप? जैसे अगर मैं आई कैट जे कैट के 3 वेक्टर्स को बोलूं तो क्या ये बेसिस वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के? यस। क्योंकि कभी भी आई कैट लोगे तो आई कैट 2 आई कैट 3 आई कैट 4 आई कैट ये सब एक्स एक्सिस के अलाउंग है। कोई भी वेक्टर लोगे एक्स एक्सिस के अलाउंग ऐसा ही वेक्टर्स होगा, बड़ा होगा छोटा होगा कोई मतलब नहीं, बट दे आर ऑल हैविंग आई कैट आई कैट आई कैट आई कैट। तो बेसिस जब ये डायरेक्शन बनाएगा, ये डायरेक्शन बेसिस है, ये डायरेक्शन बेसिस है, तो भाई इसके साथ हर जगह पर ये बेसिस रहेगा। ऐसा नहीं है कि बेसिस हर जगह पर नहीं रहेगा। बेसिस एग्जिस्ट एट एवरी लैटिस पॉइंट, हर लैटिस पॉइंट पर इस तरह से बेसिस रहेगा। बट उसका दूसरा एटम कहां जाएगा? क्या वो यूनिट सेल में आएगा? आप कहोगे नहीं, वो यूनिट सेल के अंदर नहीं आएगा। दे आर लाइंग आउटसाइड दिस यूनिट सेल। ये है एटम्स बट दे आर लाइंग आउटसाइड दिस यूनिट सेल, दे आर अवेलेबल एट आउटसाइड ऑफ द यूनिट सेल। ओके सर व्हाट इज द डायटोमिक बेसिस हियर? 2 एटम्स, डायटोमिक मींस 2 एटम, बेसिस 2 एटम बेसिस। बेसिस मींस हियर आपको मैं तो बता ही रहा हूं, बेसिस का मीनिंग मैंने बताया है, वन और ग्रुप ऑफ वन मोर देन वन एटम। अगर मान लो एक एटम हो या 2 एटम हो या 4 एटम, इनका ग्रुप एक पॉइंट पर रखा जाए और इससे पूरा क्रिस्टल बन जाए। क्रिस्टल किसका बनेगा? अब ये एग्जांपल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैडमियम बन रहा है, ये जिंक बन रहा है, ये हीलियम बन रहा है, ये मैग्नीशियम बन रहा है, इस तरह की क्रिस्टल्स बनेंगे। और क्रिस्टल में 2 एटम्स की बेसिस है, 2 मैग्नीशियम एटम्स एक लैटिस पॉइंट पर ओक्युपाई हो रहे हैं और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये बेसिस है 2 एटम्स की, ईच लैटिस पॉइंट पर रखा जाएगा, जिसमें लैटिस पॉइंट्स है। और इस तरह से पूरा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बन रहा है। 3 एटम्स जो इनर वाले हैं 1 2 3 ये तो अंदर है यूनिट सेल के, ये एटम्स बाहर आ रहे हैं यूनिट सेल से, इसलिए इनका बेसिस मैं नहीं दिखा रहा था, बट अभी मैंने इसको थोड़ा सा शो करने के लिए, जस्ट कि आपको समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही लैटिस पॉइंट्स पर हमने डायटोमिक बेसिस रखी, सभी लैटिस पॉइंट्स पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ये डायटोमिक बेसिस होंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो दिखा नहीं पा रहे हम लोग, एक ही यूनिट सेल में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में? जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का जो लाइन दिखा रखा है दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ बेसिस। वन एटम इज एट सेंटर, मान लो एक एटम यहाँ सेंटर पर है, ये सेंटर हो गया ओरिजिन, तो दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/3 2a/3, और क्योंकि हाइट c/2 है, हाइट तो c/2 है, पूरा हाइट c है, ट्रायंगल बीच में रहेगा तो c/2 हाइट हो जाएगा, तीसरा कोऑर्डिनेट c/2 हो गया, a/3 2a/3 c/2, नीचे का आइटम ओरिजिन। अब इसको कहोगे कि मैं इसको ओरिजिन लेना चाहता हूं तो ले लीजिए, मैं इस एटम का कोऑर्डिनेट जो कि यूनिट सेल के बाहर है इसका लिख लेता हूं, इसको आप ओरिजिन लोगे
जिसका बेसिस का दूसरा आइटम बाहर है यूनिट सेल से a/3 2a/3 c/2 इस तरह से कहीं पर भी बेसिस को दिखाओगे बेसिस का एक आइटम ओरिजिन पर दूसरा उससे कुछ डिस्टेंस पर होगा एंड उसके साथ उसका कोऑर्डिनेट मिल सकता है। ये बेसिस वैसे ही है जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में बेसिस का कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्वांटम में बेसिस जानते हैं, साइन साइड लेते हैं वहां पर, है ना। मैट्रिक्स में जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 i कैप j कैप k कैप दिखा ये हर जगह पर इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ भी बेसिस है जो कि यूनिक है, सेम रिप्रेजेंटेशन पूरे क्वेश्चन के लिए उस बेसिस के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। क्लियर? तो ये है हमारा बेसिस। बेसिस हमने नीचे से ऊपर की तरफ दूसरे आइटम को ऊपर लिया है, एक आइटम नीचे के लिए लिया। ये आप दाएं से बाएं भी ले सकते थे, ऊपर से नीचे भी ले सकते थे, नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे भी ले सकते हो। यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जस्ट कोई भी चूज करो यूनिक रहना चाहिए बस। ठीक है ना। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ ले रहे हो तो बात नहीं, आप ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही तरीका है। जो लोग वो क्वेश्चन में फॉलो करना है। आप बोलते इसके साथ मैं इसको एसोसिएट करता हूं तो मैं बोलता इसके साथ इसको एसोसिएट कर दो, इसके साथ इसको एसोसिएट कर दो, हो जाएगा। ऊपर की लेयर के साथ नीचे ट्रायंगल लेयर को एसोसिएट कर सकते हो ना। सेम ओरिएंटेशन देखो मैं दिखा रहा हूं, रेड कलर से 3 लाइन, दो आइटम्स एसोसिएटेड है। ऊपर की लेयर के 3 आइटम लिया, दो कॉर्नर के सेंटर, नीचे का ट्रायंगल लिया। क्लियर होगा? बेसिस डायटोमिक लैटिस सिंपल हेक्सागोनल लैटिस क्रिस्टल क्लोज पैक हेक्सागोनल। इसको डाउट्स हैं अभी भी? किस स्टूडेंट को डाउट है इसको समझ में आ गया पूरी तरह से? सर रिमेनिंग जो लेटिस पॉइंट है वो दूसरी यूनिट सेल के इनर एटम से अटैच रहेंगे। जी हाँ, इनर आइटम से भी अटैच हो सकते हैं या एक कॉर्नर तो रहेगा। एक कॉर्नर के सेंटर यहाँ पर है, दूसरा आइटम का आइटम होगा किसी दूसरे यूनिट सेल का साइड में होगा, ऊपर होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, कहीं होगा। ठीक है, इनर आइटम होगा। यस, समझ में आया? यस सर। जो ब्लैक कलर के आइटम दिखा रखे हैं ना ये ग्रीन लाइन के बाद, वो यूनिट सेल से बाहर नहीं जाएंगे। यस, कोई और डाउट? सर अगर कोई एक यूनिट सेल डायटमिक बेसिस दिखा रहा है तो जो होल स्ट्रक्चर होगा यानी कि किसी मेटल का उसके जितने भी यूनिट सेल होंगे वो सब डायटमिक होने चाहिए ना। आपको मैंने बोला है यूनिट सेल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल। अगर वो यूनिट सेल डायटोमिक है, डायटोमिक बेसिस दिखा रहा है तो पूरा क्रिस्टल दिखाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर वो रिपीट हो रहा है, हर प्लेस पर वो रिपीट करे अपने आप को। ठीक है सर ये जो एक एटम सर है उसे दो बेसिस में से हो सकता है? नहीं भाई, एक आइटम दो बेसिस में कैसे जाएगा? दो मतलब दो जगह बेसिस में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? वो एक ही जगह होगा ना। पूरे यूनिट सेल में इनर, पूरे यूनिट सेल में 3 इनर एटम्स हैं और 3 एटम्स हैं ऐसे जो फेस सेंटर एंड कॉर्नर पर है। तो एक इनर को एक फेस सेंटर के साथ रिलेट करोगे ना, या एक कॉर्नर के साथ रिलेट करोगे ना। अब ऐसा नहीं है कि ये दो दो मैं बोल रहा था कि जैसे सेंटर से सेंटर में जो एक नीचे तो उससे ऊपर वाला इसके साथ भी एक बना सकता है, तो जो एटमेटिक में जो है एक समय एक ही के साथ बनाएंगे। ओके सर। ये यूनिक है तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बना दोगे। जैसे मैंने यहाँ इमेज पहले बना रखा है, नीचे लेयर से एक एटम को लिया, ऊपर के ट्रायंगल लेयर से एक एटम से एसोसिएट कर दिया। अगर नीचे वाले लेयर से एसोसिएट कर चुके हो, ऊपर वाले लेयर से नहीं एसोसिएट हो पाएंगे, तो उस केस में बेसिस का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? अगर आप बेसिस में ये डायरेक्शन ले रहे हो, ये डायरेक्शन, इसमें भी ये डायरेक्शन ले रहे हो, यही डायरेक्शन रखना। अब ऊपर से ये डायरेक्शन मत लेने लगना, वो गलत हो जाएगा। इसलिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आई कैप जे कैप के कैप लिखा है और आपको पता है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को लेना है, वाई के पॉजिटिव को लेना है, जेड के पॉजिटिव को लेना है, तो ऐसा नहीं है कि माइनस एक्स को भी आप बेसिस में लिखोगे, नहीं लिख सकते। ओनली आई कैप होगा। हाँ, माइनस आई कैप लिखोगे तो ये अंडरस्टूड है कि अपोजिट है, ये अंडरस्टूड है। कोई वेक्टर लिखने में आई कैप और माइनस आई कैप का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। बट इतना ध्यान रखना कि जो आई कैप है, माइनस आई कैप है, जे कैप है, माइनस जे कैप है, के कैप, माइनस के कैप, एट ए टाइम ओनली तीनों पॉजिटिव लो या तीनों नेगेटिव लो। यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं कि पॉजिटिव आई कैप को भी आप बेसिस ले रहे हो, माइनस आई कैप को भी, आई कैप प्लस जे कैप को भी यूनिक ले लिया, आई कैप माइनस जे कैप को भी ले लिया, तो एक समय पर एक ही चूज करना है आपको। और इसीलिए ये तीनों का मैंने यहाँ ओरिएंटेशन दिखाते हुए नीचे के एक एटम को ट्रायंगल के एक एटम के साथ एसोसिएट किया। या ये हो गया कांसेप्ट ऑफ डायटोमिक बेसिस, सिंपल हेक्सागोनल लैटिस एंड स्ट्रक्चर नेम इज क्लोज्ड हेक्सागोनल। ये तभी होगा जब एटम्स का नंबर दुगुना हो, लैटिस पॉइंट्स आधे हो। 3 लैटिस पॉइंट पर 6 एटम्स रखना है, तब ऐसा होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे डायटोमिक बेसिस के कांसेप्ट्स आएंगे। यहां देखिए और आगे ये जो येलो कलर का यूनिट सेल दिखाया है, दिस इज ए पैरेललोपाइड। ये एक पैरेललोपाइड है। दिस येलो कलर यूनिट सेल इज एक्चुअली a पैरेललोपाइड एंड दिस इज हैविंग 1/3 वॉल्यूम ऑफ होल हेक्सागोनल यूनिट सेल। पूरे हेक्सागोनल यूनिट सेल का ये 1/3 रखता है वॉल्यूम, इसलिए मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल मतलब नॉन प्रिमिटिव। सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव था, वॉल्यूम था 3/2 a स्क्वायर से आगे टोटल 3 एटम्स पर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल जो कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कंस्ट्रक्ट होगा, उसका वॉल्यूम है 3/2 a स्क्वायर c। देयर विल बी नंबर ऑफ एटम्स 1 बिकॉज़ बेसिस यहां मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक बेसिस है पर एटम अपर यूनिट सेल देयर विल बी ओनली 1 एटम। उसका टॉप व्यू यहां दिखाया है, साइड व्यू दिखाया है, टॉप प्लेन कैसे बनेगा पैरेललोग्राम के फॉर्म में, येलो कलर से पैरेललोपाइड दिख रहा है। आप समझ में आ रही है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव एंड कन्वेंशनल? भाई मैं आपको बता चुका ना, आपको मैं बता रहा हूं, आप एक मीनिंग पूछते जाओगे। मैंने आपको बोला पहले क्लास में ये सारी चीजें नहीं जान सकते जो मैं 5वीं क्लास में पढ़ा रहा हूं। आपको मैंने बोला है ना प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, मैं बोल दूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा जब तक कि उसको एग्जांपल लेके ना बताओ। जब तक मैंने 8 9 घंटे क्लास हो चुकी है, अब उसको पूरा रिपीट करने का मतलब है कि मैं इन लोगों को बोल दूं कि भाई ये लोग क्लास छोड़ के मैं आप ही को अकेले डील कर लूं, है ना। इन लोगों को पता है प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। आपको मैं बोल रहा हूं एक बार वीडियोस देखी जाए, फर्स्ट डे है उसका मैं समझता हूं। अगर आपको इस बैच में रखना होगा इस टॉपिक के लिए तो रखा जाएगा, अगर आप समझ पाओगे तो। अदरवाइज अगले किसी बैच में ये टॉपिक आपको शुरू से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आपने लेट में ज्वाइन किया, अभी दूसरे बैच शुरू होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं शुरू होगा। अभी एग्जाम आपको 24 में देना है, 2024 में। अब आज ही आप सोचोगे कि मैं 5 लेक्चर का काम आज ही एक दिन में कर लूं, तो अभी एग्जाम तुरंत नहीं देने जा रहे हो, है ना। या आज ही मैं 5 लेक्चर, मैं इतना जरूर बोल रहा हूं आपको सारी चीजें कवर करा दी जाएंगी। वो आज इस बैच के साथ अगर आप मान लीजिए 5 क्लास आगे निकल गए तो दूसरी क्लास में आपको ये 5 लेक्चर हो जाएंगे। बट अगर ट्राई करोगे एक बार वीडियो देखने का, समझ में आ जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अगली क्लास से आप सबके साथ कंटिन्यू हो जाओगे, सिमिलर टॉपिक पढ़ा जाओगे, तब समझ में आ जाएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल की प्रॉपर्टी ही लिखी है, नंबर ऑफ एटम 1 होना चाहिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने पीछे यूज किया है सिंपल हेक्सागोनल में। यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा है प्रिमिटिव यूनिट सेल कभी ना n-1 यूज किया है, यहाँ भी n-1 होगा। वॉल्यूम 3/2 a स्क्वायर ये था प्रिमिटिव का वॉल्यूम, वहां आ गया है। ये वेक्टर्स कैसे होंगे? इस वेक्टर का a1 a2 आप दिखा सकते हो इस इमेज में, जो येलो कलर का इमेज है ना, इसमें आप दिखा सकते हो ना। इसको मान लो x एक्सिस है, ऊपर यहाँ मान लो y एक्सिस है, ऊपर z एक्सिस है, तो आप a1 a2 वेक्टर्स इस पैरेललोपाइड जो ये येलो कलर का पैरेललोपाइड है ना, इसमें दिखा सकते हो। मान लो ये a1 है, ये a2 है, a1 a2 की वैल्यू जो वहां 3/2 1/2 लिखा था ना, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्चुअली। उससे मालूम आपको जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ,
1/3 वॉल्यूम, वॉल्यूम ए 1/3 हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नंबर ऑफ एटम प्रिमिटिव में कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स नॉन प्रिमिटिव में कितने होंगे, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये सब कुछ समझ में आ गया। तो मैंने पहले भी आज यूज किया है एग्जाम क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऑलरेडी यूज किया, ठीक है। ये मैंने बस स्लाइड बना रखी है क्योंकि चीजें इस तरह से भी पूछी जाती हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जब पूछ लेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट्स, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जैसे अभी कार्बन का पूछ कुछ भी सकता है, इसलिए एक बार ये स्लाइड दिखाता हूं, एक बार ये स्लाइड दिखाता हूं अलग से। नेक्स्ट चलें, प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बनता है सिंपल हेक्सागोनल, ये बात समझ में आई। कितने एटम्स हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में, केवल एक, दैट इज फाइन। कितना प्रिमिटिव, एक, वन प्रिमिटिव, वन एटम पर प्रिमिटिव यूनिट सेल, वन लैटिस पॉइंट पर प्रिमिटिव यूनिट सेल, तीन एटम्स, तीन लैटिस पॉइंट, एक ही एटम होगा एक लैटिस पॉइंट के साथ, यस सर। यस सर। और वो इन कॉर्नर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन लैटिस पॉइंट 8 है ना, तो 6 को मैंने बोला था 1/6 कंट्रीब्यूशन, 6 को लिखा था 1/12 कंट्रीब्यूशन, कल बात हो चुकी है इस पर। नंबर ऑफ एटम विल बी 1 और नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट विल बी 1 बिकॉज़ ईच लैटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइंग 1 एटम, एक लैटिस पॉइंट एक एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको कॉर्नर्स रखने वाला पैरेललोपाइड प्रिमिटिव है, इसमें एक एटम होगा, इसमें एक लैटिस पॉइंट होगा, बेसिस मोनोएटॉमिक है। नेक्स्ट, प्रिमिटिव यूनिट सेल एचसीपी स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा, हेक्सागोनल ग्रुप है, यहां भी सिमिलर है। 3√3/2 a² c नॉन प्रिमिटिव का वॉल्यूम है, 6 एटम्स पर यूनिट सेल, ये तो आपने कहा क्लोज पैक का वॉल्यूम था 3√3/2 a² c, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल 6, वॉल्यूम को आधा करो, 1/3 करो, वॉल्यूम को 1/3 करो, नंबर ऑफ एटम्स भी 1/3 करो। अब इसमें एक ही बेसिस, 2 एटम्स है, डायरेक्ट बेसिस, तो इस यूनिट सेल में कॉर्नर तो 8 आएंगे ही, जिससे 1 एटम मिलेगा और एक इनर एटम भी आ जाएगा, ट्रायंगल वाला 3 एटम जो है, तीनों यूनिट सेल में एक कंट्रीब्यूशन चला जाएगा, ग्रीन कलर से दिखाया उसको। तो देयर विल बी 2 एटम्स पर यूनिट सेल बिकॉज़ नाउ बेसिस इज डायटोमिक बेसिस, बेसिस जो है वो डायटोमिक है, इसलिए 2 एटम पर यूनिट सेल रहेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे। तो देयर विल बी 1 लैटिस पॉइंट, प्रिमिटिव में एक ही लैटिस पॉइंट होगा, लेकिन एटम कितना होगा, 2। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक लैटिस पॉइंट पर 2 एटम्स आ रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक में, और उसी को मैंने यहाँ येलो कलर के प्रिमिटिव यूनिट सेल के फॉर्म में, पैरेललोपाइड के फॉर्म में दिखाया हुआ है, जिसमें 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन 1 एटम देगा, और एटम में ग्रीन कलर से दिखाया गया एटम 2 एटम्स हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए इसको एक बार, इस पूरे पॉइंट को देख लीजिए, दोनों को, क्लोज पैक को भी, सिंपल हेक्सागोनल को, दोनों का स्ट्रक्चर आप क्लियर कर लीजिए। यस, हो गया, यस सर, डन। यस सर। डन, क्लियर भी हो गया ना। यस सर, क्लियर है। डायटोमिक बेसिस एंड सिंपल हेक्सागोनल लैटिस, जब वो रहेगा तो ये बातें भी आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ कन्वेंशनल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम होगा, दोनों में एटम्स कितने होंगे, बेसिस को डायटोमिक है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में ही 2 एटम्स होंगे, लैटिस पॉइंट 1 रहेगा, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल सिंपल हेक्सागोनल लैटिस बना रहा था ना। तो चलिए बात आगे आएगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का नाम है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं एक क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल होंगे, एक। चार। देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स, 8 कॉर्नर है तो बॉडी डायगोनल 4 होंगे या नहीं होंगे। एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स को जब ड्रॉ करेंगे बॉडी डायगोनल ड्रॉ करने के लिए, तो अपोजिट कॉर्नर्स ज्वाइन करते हैं, अपोजिट फेसेस वाले, तो आप देखिए कि 8 कॉर्नर्स को ज्वाइन करने पे ओनली 4, 8 कॉर्नर्स को ज्वाइन करने पर ओनली 4 बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन कहाँ होता है, बॉडी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन कहाँ होता है, बॉडी सेंटर, सेंटर। बॉडी सेंटर। अब अगर मेरे पास ये लेंथ है, यहाँ एक कॉर्नर, ये मान लो बॉडी डायगोनल, ठीक है, ये रेड कलर का जो मैं दिखा रहा हूँ लाइन, ये मान लो बॉडी डायगोनल, इसमें एक कॉर्नर यहाँ हो गया, एक कॉर्नर यहाँ हो गया, कॉर्नर, एक बॉडी सेंटर यहाँ है, ठीक है। बॉडी सेंटर कितनी दूरी पे होगा कॉर्नर से, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी बताओ, √3/2 √3/2 टाइम्स a, यस सर, टाइम्स। √3/2 टाइम्स a। अब मुझे बताना कि जो एटम यहाँ होगा, जो पॉइंट्स यहाँ होंगे, ये कौन से पॉइंट्स है, बॉडी डायगोनल कितने पार्ट्स में बांटा है, ये बॉडी सेंटर को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा था, अभी 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स मींस क्वार्टर, पहले हाफ में था, क्वार्टर में हो गया ना। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/4। √3a/4 मतलब जो भी कॉर्नर्स हैं उससे बॉडी डायगोनल का चौथाई, 1/4 क्वार्टर ऑफ बॉडी डायगोनल लेंथ पर, सभी कॉर्नर से क्वार्टर ऑफ बॉडी डायगोनल मींस √3a/4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, दिख रहा है आपको ये पॉइंट जो कि वायलेट कलर से दिखा रहा हूं, दीस पॉइंट्स आर एक्चुअली नोन एज टेट्राहेड्रल वाइड्स। सभी कॉर्नर से, जितने भी कॉर्नर से 8 कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस मतलब क्वार्टर ऑफ बॉडी डायगोनल लेंथ पर √3a/4 डिस्टेंस पर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं। मिल रही है आपको टेट्राहेड्रल वाइड्स, समझ में आया कैसे आएगा। बॉडी डायगोनल लीजिए, बॉडी डायगोनल की लेंथ है √3a, उसका क्वार्टर वैल्यू होगा √3a/4, सभी कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के अलोंग √3a/4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनेगा, उसका नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड उसका पॉइंट का नाम होगा, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जब टेट्राहेड्रल वाइड होगा तो डिस्टेंस मान लो √3a/4 आपने मान ली। अब ये पॉइंट बताना है कि क्या ये टेट्राहेड्रल वाइड नियरेस्ट नेबर्स में एटम्स रखेगा, कितने एटम्स रखेगा, टेट्राहेड्रल वाइड नियरेस्ट नेबर में कितने एटम्स रखेगा। आपको इस इमेज में जो ये लोकेशन दिख रहा है वायलेट कलर की, दिस इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल वाइड पर अवेलेबल एटम है, दिस इज टेट्राहेड्रल वाइड, जो वायलेट कलर से है ये टेट्राहेड्रल वाइड पर है। इसके लिए नियरेस्ट नेबर देखिए कौन कौन से दिख रहा है नेबर्स, वो भी वायलेट कलर 4, यस 6 कैसे भाई,
इसका सिवा आप इस आइटम को देख लीजिए, ये वाले को, ये साइड वाले फेस सेंटर, ये अपर सरफेस का फेस सेंटर, ये लोअर, 3 फेस सेंटर हो गए और एक कॉर्नर। 3 फेस सेंटर, कॉर्नर के साथ 3 फेसेस लाई करेंगे ना, 3 फेसेस इंटरसेक्ट करेंगे कॉर्नर पर, तीनों फेसेस का फेस सेंटर और वो कॉर्नर, ये 4 मिलकर के क्या बनाएंगे? टेट्राहेड्रॉन। 3 फेस का सेंटर कॉर्नर के साथ मिलकर के टेट्राहेड्रॉन बना रहा है ये। और टेट्राहेड्रॉन की वाइड पर क्या है, जो कि कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पर थी, तो क्या होगा ये टेट्राहेड्रॉन वाइड, इस पर एटम रखा है। एक कॉर्नर 3 फेस सेंटर मिलकर के टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे, उसकी वाइड पर होगा अवेलेबल टेट्राहेड्रॉन वाइड। ये हुआ टेट्राहेड्रल वाइड बॉडी डायगोनल पर अवेलेबल है, कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अब ये टेट्राहेड्रल वाइड पर रखा हुआ एटम अपने साथ 4 नियरेस्ट नेबर देखेगा, जिसमें 3 तो फेस सेंटर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा कॉर्नर। क्लियर? 3 फेस Yes, सेंटर, sir. कॉर्नर। यस सर। तो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कि इस स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स क्या पोजीशंस ऑक्युपाई करते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक बन रहा है, तो 8 कॉर्नर है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6 7 8 टोटल क्यूबिक यूनिट में 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर पर डायमंड क्यूबिक लिखा है, डायमंड में कार्बन एटम होता है, तो कार्बन एटम ऑक्युपाई करता है 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर। फेस सेंटर भी अवेलेबल है, फेस सेंटर ऐसे लिखा हुआ है, 6 फेस सेंटर पर भी कार्बन एटम, एंड देयर आर 4 अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स। 8 टेट्राहेड्रल वाइड की बात की, सभी कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वाइड है। 8 में से 4 को ऑक्युपाई कराना है, 4 को ऑक्युपाई नहीं कराना, 4 अल्टरनेट ऑक्युपाई कराएंगे। ठीक है, और इसीलिए इस कॉर्नर से जो टेट्राहेड्रल वाइड आ रही है उसको तो लिया, इस वाले कॉर्नर का नहीं लिया, फिर इस वाले का लिया है, इधर वाले का नहीं लिया, ऊपर वाले में इसका नहीं लिया, अल्टरनेट मिल लिया है, इसका नहीं लिया, इसका ले लिया। तो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वाइड चूज किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि 8 कॉर्नर से ले लिया, 8 कॉर्नर्स में एक कॉर्नर का टेट्राहेड्रल वाइड चूज किया, एक कॉर्नर का टेट्राहेड्रल वाइड हटा दिया। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड्स कौन सी चूज की गई हैं, कौन सी हटाई गई हैं। एक अल्टरनेट वर्ड यहाँ ध्यान रखें, टोटल 4 टेट्राहेड्रल वाइड्स आर ऑक्युपाइड बाय कार्बन एटम्स, अदर 4 आर वैकेंट, अदर 4 वैकेंट है, खाली है। तो इन FCC यूनिट्स देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वाइड, आउट ऑफ दीस 8 ओनली 4 टेट्राहेड्रल वाइड्स आर ऑक्युपाइड बाय कार्बन एटम्स, 4 अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स आर ऑक्युपाइड। अल्टरनेटिवली एक लिया गया, एक ड्रॉप किया गया। कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड्स की दूरी √3a/4 होगी, √3a/4 मतलब क्वार्टर ऑफ बॉडी डायमीटर, बॉडी डायमीटर का लेंथ √3 है, क्वार्टर का मतलब √3a/4। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। सर ये वाइड समझ आया, टेट्राहेड्रल वाइड। वाइड मैं बोल रहा हूँ, वाइड मतलब होल दैट पॉइंट, टेट्राहेड्रॉन बनेगा तो उसका सेंटर होता है टेट्राहेड्रल वाइड, वही टेट्राहेड्रॉन बनेगा तो उसका सेंटर टेट्राहेड्रल वाइड आ जाता है। वाइड मतलब इंटरस्टिशियल साइट, टेट्राहेड्रॉन में जो सेंटर में खाली जगह होगी वही टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रॉन पहली क्लास में मैंने आपको बताया है, पहली क्लास में मैंने ये सीख करना की। CH4 अगर बनता है मीथेन में, हाइड्रोजन बनाता है टेट्राहेड्रॉन, कार्बन कहां ऑक्युपाई करता है? सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन पर हाइड्रोजन टेट्राहेड्रॉन बनाता है CH4 में, हाइड्रोजन से बने हुए टेट्राहेड्रॉन का सेंटर कौन ऑक्युपाई करता है? कार्बन। ठीक है, कार्बन ऑक्युपाई करता है टेट्राहेड्रल वाइड का सेंटर। ठीक है, ये तो बात हो गई, नोट करें तो नोट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, सही Yes, 4 बोलिए। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसे ली गई है? मैं बताता हूँ, 8 कॉर्नर है ना, इधर से टेट्राहेड्रल वाइड लिया है, इस कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड लिया गया, देखो। ये सर नीचे से अल्टरनेट अपोजिट वाले लिए गए हैं और ऊपर से भी अल्टरनेट अपोजिट वाले ना। अब कोई भी देखो, यहाँ से लिया गया, यहाँ से नहीं लिया गया, यहाँ से लिया गया, यहाँ से नहीं लिया गया। ठीक है, यस फिर इधर ले लिया गया, इस साइड वाले से नहीं लिया गया, इधर नहीं लिया गया, इधर ले लिया गया, ऊपर नीचे भी देख सकते हो, दाएं बाएं भी देख सकते हो, इधर ले लिया गया, इधर नहीं लिया गया, इधर ले लिया गया, वही है। 8 कॉर्नर है तो अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पर टेट्राहेड्रल वाइड लेना है, 8 नहीं लेना। आप जैसे चूज किया गया ना, जहां पर क्रॉस लगाया वहां पर ले सकते थे, जहां क्रॉस नहीं लगाया सही का मार्क लगाया है वहां पर आप नहीं ले। अल्टरनेट लेना चाहे तो पोजीशन चूज करो, एक को लो, एक को छोड़ दो, एक पोजीशन से, एक कॉर्नर से लो, एक कॉर्नर से ड्रॉप कर दो। क्लियर? Yes, sir. यूनिट सेल देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। यूनिट सेल 3 डायमेंशन दिया है, 3 यूनिट सेल है ये समझने के लिए। तो only 4 tetrahedral whites are taken alternatively and other 4 are not taken, they are not considered because those are unoccupied, इसलिए नहीं लिया गया। अब आप देखिए, इसमें अगर मैं दिखाऊं इस इमेज में, तो मैंने इसमें कॉर्नर और फेस सेंटर रेड पॉइंट से दिखाया है, रेड पॉइंट से ना, और बॉडी डायगोनल दिख रहा है आपको इसमें, बॉडी डायगोनल यस सर, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड मैंने जो अनऑक्युपाइड है उसको ग्रीन कलर से दिखाया है, और जो ब्लू कलर से दिखाया है वो ऑक्युपाइड है, यहाँ लिखा भी है इसमें। टेट्राहेड्रॉन का जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो सेंटर होता है, एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर मिलाकर टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे, एक कॉर्नर एटम 3 फेस सेंटर मिलाकर क्या बनाएंगे टेट्राहेड्रॉन, उसका वाइड क्या होगा टेट्राहेड्रल वाइड, उस पर भी एटम ऑक्युपाई करेगा। इस इमेज में दिखा दिया है कि ये टेट्राहेड्रॉन कहां पर है, किस तरह से बनता है। टेट्राहेड्रॉन मेड बाय 1 corner and 3 face center atoms, 3 face center atoms, and the टेट्राहेड्रल वाइड इज आल्सो ऑक्युपाइड बाय कार्बन एटम। ठीक है, या इमेज में रेड, ग्रीन और ब्लू 3 इमेज कलर लेके आपको दिखा दिया कौन कौन सी लोकेशंस ऑक्युपाइड है, कौन कौन सी लोकेशन अनऑक्युपाइड है। यस, इसमें कोई पॉइंट नहीं, इसमें देखो इमेज मैंने बॉडी एंगल पर √3a/4 डिस्टेंस पर ग्रीन और ब्लू एटम्स लेकर दिखाया। अगर ग्रीन ऑक्युपाई होगा तो ब्लू नहीं होगा, ब्लू ऑक्युपाई होगा तो ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, पोजीशंस में ब्लू और ग्रीन एक्सचेंज कर सकते हो, ऑक्युपाइड को अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड को ऑक्युपाइड से एक्सचेंज कर सकते हो। एट ए टाइम ओनली 4 अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्युपाइड होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? देख लीजिए, पॉइंट्स क्लियर कीजिए। यस, यस सर क्लियर है। तो नाउ वी हैव नेक्स्ट कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में अगर कॉर्नर और फेस सेंटर देखें तो कितने एटम्स थे? FCC lat इसमें 4 था। देयर आर 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर, 4 एटम्स ऑक्युपाइंग एट टेट्राहेड्रल वाइड, सो दे आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। टोटल एटम्स कितना हुआ? 4 पूरा कंप्लीट इनसाइड है टेट्राहेड्रल वाइड वाला, और 4 एटम्स फेस सेंटर कॉर्नर से, टोटल 8 एटम्स पर यूनिट सेल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स 2 r = √3a/2। कॉर्नर एंड टेट्राहेड्रल वाइड वाला एटम कितनी दूरी पर थे? कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड √3a/4, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उतनी डिस्टेंस पर नियरेस्ट नेबर अवेलेबल होंगे। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 एंड द डिस्टेंस विल बी √3a/4। चेक कीजिए, √3a/4 डिस्टेंस पर 4 नियरेस्ट नेबर, इसमें एक कॉर्नर पर है और 3 फेस सेंटर पर है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स क्या है? √3a/4। ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 4 है। इमेज में देखिए, रेफरेंस एटम एक टेट्राहेड्रल वाइड लेके एक कॉर्नर, एक फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर, तीसरा 3 फेस सेंटर दिखाया, 3D डायग्राम भी दिया है। देख लीजिए एक बार, कुछ डाउट्स बता दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन होता है, बताइए एग्जांपल्स होता है, लूज पैक, क्लोज पैक में कैटेगराइज करना होता है, सेकंड नेबर है तो सेकंड नेबर देख लेंगे।
Okay, students, Yes, sir, done. डन, समझ में आ गया तीनों पॉइंट? देख लिया? 2r = √3a/4 ये शॉर्टेज डिस्टेंस था। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पाइपिंग, सॉरी एक पेज छूट गया था बीच में, एक पेज छूटा है। यहाँ पर सेकंड नेबर अगर देखें तो एफसीसी लैटिस का नियरेस्ट नेबर यहाँ सेकंड नेबर का काम करेगा। एफसीसी लैटिस का जो नियरेस्ट नेबर है वो यहाँ सेकंड नेबर है, डिस्टेंस वही, नंबर वही। पैकिंग फ्रैक्शन होगा 34%, 0.34। पैकिंग फ्रैक्शन में देखिए 8 एटम पर यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल में 8 एटम्स, 4/3 पाई r क्यूब, a क्यूब डिवाइड करेंगे बिकॉज़ क्यूबिक यूनिट सेल है, √3/16 टाइम्स पाई, √3/16 ये पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है, डेसिमल में 0.34, परसेंटेज में 34%। ये 12 है सेकंड नेबर्स, पैकिंग फ्रैक्शन 34% इज 0.34 इधर से 0.34, और ये पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड क्यूबिक का है और मिनिमम है। जितने भी स्ट्रक्चर सब तक पड़े हैं उनमें सबसे मिनिमम पैकिंग फ्रैक्शन 34% है। क्लियर? एंड लास्ट में नेक्स्ट है कि दूसरी पैक है तो दूसरी पैक है, आपको पैक बोल सकते हैं। डायमंड है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिंक सल्फाइड और गैलियम फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड, इन सब का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, मटेरियल जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायमंड, यही मटेरियल यूज होगा। टाइप ऑफ पैकिंग यहाँ लूज पैक है। अगले क्लास में अगला स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, अभी इस स्ट्रक्चर में यहीं तक, इस क्लास में यहीं तक डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो? यस Sir, can you just move to previous slide? यस, दिस इज द प्रीवियस स्लाइड। नेबर इज 12, डिस्टेंस इज a/√2 एंड दिस इज सिमिलर टू द रिजल्ट ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस 1 नियरेस्ट नेबर। इनका फेस सेंटर क्यूबिक में जो नियरेस्ट नेबर था फेस सेंटर क्यूबिक का, उसमें भी 12 एंड डिस्टेंस a/√2 सेम यहाँ भी। ओके नेबर यहाँ का 1 नियरेस्ट नेबर। Okay, sir, thank you. एंड अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर मॉडर्न फिजिक्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? मैं नहीं बता सकता, मेरी चल रही, मुझे बस इतना पता है। बताया जाएगा आपको, कुछ तो टॉपिक वही पढ़ रहे हो ना, तो जैम का है, आप हो जाएगा वो टॉपिक, ओके सर। वो भी स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम भी करोगे, एग्जाम के पहले कोर्स को खत्म करना है ना, पहले किसी का एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज एक साथ नहीं चला सकते ना, तो एक आध तो बीच में जैसे कुछ हो जाता है, परसेंट कुछ हो जाता है 50-60%, के बाद थोड़े दिन उसको स्टॉप देके दूसरा शुरू कर लिया जाता है। ये लास्ट मोमेंट ऐसा तो है नहीं कि एक पेपर, एक टॉपिक एग्जाम दोगे दूसरे का बोलोगे अगले साल आएंगे, वहाँ तो साल देना है ना। इसलिए स्ट्रेटजी ये रहेगी कि भाई 3-4 टॉपिक एक साथ चलता है, फिर कुछ दिन के बाद एक टॉपिक उसमें रोके दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ी पढ़ते जाते हो, क्योंकि अभी इसमें टाइम पास हो जाता है, साथ साथ ये लग जाता है कि भाई इतना कोर्स को पढ़ा है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की थोड़ा टाइम लगता है। सर इसके कितने लेक्चर होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से? 5 है। 5 चलिए ठीक है, कोई डाउट पूछना चाहते हैं? सर लास्ट क्लास की जो संडे को जो क्लास हुई थी उसकी सर पीडीएफ अपडेट नहीं हुई अपना। तो नेक्स्ट वीक हो जाएगी, नहीं हुई तो हो जाएगी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और कुछ पूछना है? सर आज वाली क्लास की पीडीएफ मिलेगा? मिलेगा, शुरू मिलेगा, आज कल मिलेगा, परसों होगा, कल जो क्लास कर लेंगे। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए, आप लोगों को सारा कुछ मिलेगा। कई बार होता है कि अपलोड नहीं हो पाया, ध्यान नहीं दिया, या दूसरी क्लास का अपलोड हो गया, कुछ ऐसा होगा, उन चीज़ों को हम लोग कितना भी चाहे कभी कभी भूल हो जाती है, हो जाती है, लेकिन हाँ ये है कि ट्राई किया जाएगा जितना इन्फॉर्मेशन क्लास का है या पीडीएफ वीडियो सुनते हो सारी चीज़। ठीक है, चलिए, और अगली क्लास कब से आज? 6:30 दूसरा क्लास अटेंड कीजिए, मीटिंग करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। So now today's class is over. Thank you students. Thank you for